Good morning, student. Today we will discuss measurement of achievement. Evaluation is a continuous process. It forms an integral part of total education system and thus is intimately related to education M. According to Kothari Commission 1966. Evaluation is a process. Evaluation is the process of determining of the extent of which aims have been be achieved. It includes all the procedure used by teacher, children, principal, and other school personnel to appropriate outcome of instruction. According to J.B. Michaelis. The evaluation is the inclusive concept. In it indicates all kind of means to estimate the quality, value, and efficiency of desired outcome. It is a compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate. It is a valuable and indisposable guide to the modification of the policies and to furthermore action. Evaluation is a continuous process and it is concerned with more than the formal academic achievement of a student. It is interested in the development of individual in term of desirable behavior change in the relation of his feeling, thinking, and action. Evaluation is the appraisal of pupil progress in attending the educational goal by the school, the class, and himself. The chief purpose of evaluation
is to guide and further the student learning. Evaluation is thus a positive rather than a negative process. Evaluation is a new technical term introduced to design a comprehensive concept of measurement. Evaluation is integrated with the whole task of education and its purpose is to improve instructions. It brings out factors that are inherent in subject growth and appreciation. Evaluation is a process of gathering and interpreting evidence on change in the behavior of the student as they are progress through school. To evaluate is to student the value of some process worthy. Thus, educational evaluation is the passing judgment on the degree of worthwhileness of some teaching process or learning experience. Evaluation is a judgment or interpretation that one draw from the information at hand about a pupil work. Now we will discuss achievement. जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब बच्चा एग्जाम देता है और उसका रिजल्ट आता है या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, उसका अचीवमेंट होता है। हम पिछली क्लासों में मापन और मूल्यांकन देख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज achievement test. An exam designed to assess how much knowledge a person has in certain area, topic and subtopic. Achievement test focus especially on how much a person know about a specific
topic area such as math, English or science and other subject. It is a formal test. Any test that are measure the accomplishment of an individual after a period of training or learning. According to Hyundai, the type of ability test that describe what a person has to learn to learn person has learned to. In this slide, I think all of you understand what is achievement test. Function of achievement test. Achievement test, आप क्लास में जाते हैं तो जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको प्रमोशन होता है, आप टेस्ट देते हैं, टीचर आपका इवैल्यूएशन करता है, उस इवैल्यूएशन में आपको बहुत सारी चीजें आप करते हैं, तो वो सब जो रिजल्ट आपके सामने आता है, जो आप में व्यवहारगत परिवर्तन आता है, वही आपका अचीवमेंट है, उपलब्धि है। ठीक है, अब इसका फंक्शंस क्या है अचीवमेंट टेस्ट के, इसको अब हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड। आप नई कक्षा में जाते हैं, जैसे 6 में है तो 7th में जाते हैं, और 7th में तो यानी आपका अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो आपका जो अपग्रेडेशन होता है वो किसके आधार पर होता है? जो आपने अचीवमेंट किया है, जो आपने जो उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है, जो आपको ग्रेड शीट मिली है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप जाते हैं। फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड इन वेरियस एकेडमिक एरिया। जब आपका परीक्षण होता है तो जो आपके डिफरेंट एरियाज हैं, वहां पर आपने क्या उपलब्धि प्राप्त करी है, इसके बारे में आपको पता चलता है कि आपने क्या मतलब अचीव किया है, आपकी क्या उपलब्धि है, आपकी कहाँ कमी है। तो अचीवमेंट टेस्ट से ये पता चलता है कि जो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, कहाँ आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा, और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर ए न्यू असाइनमेंट हैज टेकन अप। जब आप का परीक्षण होता है और आपको बताया जाता है कि आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आपको और मेहनत करनी है, आपको और आगे बढ़ना है। एक्सपोज pupils difficulties which the teacher can help them to solve। इसमें जो टीचर होता है वो उनकी जो उनकी डिफिकल्टीज हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। उनकी जो परेशानियां हैं, जो कहाँ उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करता है, उनको सॉल्व करता है। ठीक है, अब जो अचीवमेंट टेस्ट है, उसके जो मेन फंक्शन है वो हमने अभी देखे।
अब हम बात करेंगे कि जो आपके जो अचीवमेंट टेस्ट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है रिलायबिलिटी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी with which an exam test measure what it seeks to measure a given variable. A good test reliability means that the test taker will obtain the same test score over repeated uh, testing as long as no other extraction factor have affected the score. A good instrument will produce consistent score, and instrument reliability is established using correlation coefficient of one type or another. यहाँ पर हम अचीवमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो जो अचीवमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे जो बड़ी बात आती है वो ये आती है कि इसमें क्या होता है कि जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम अपनी पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से परिचर्चा कर चुके हैं। ये आपको पता होगा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है। बहुत सी चीजें हम बार बार डिस्कस नहीं कर सकते, तो आपको इसका तो पता ही होगा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है। फिर भी जैसे मान लो कि बार बार परीक्षण करने पर सेम रिजल्ट आते हैं, है ना, तो स्कोर सेम रहता है ना, तो वो क्या होता है, रिलायबल होता है ना। तो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, जैसे मान लो घड़ी है, घड़ी का काम टाइम शो करना है, उसी टाइम पीरियड के पास चलना है, तो वो क्या है, रिलायबल। इस तरह से हम इसका एग्जांपल हमने पिछली वाली क्लास में देख लिया था। वैलिडिटी, validity is the quality of the test which measure what is to supposed to measure. It is a degree to which evidence, common sense, or theory supports any interpretation or conclusion about a student based on
his her test performance. A test is valid when it produces constant score over time. Measure what it intend to measure, can be objectively scored. It has representative norms. Next characteristics of achievement test: objectivity. A test is objective when the score's personal judgment does not affect the scoring. जनरली आपने देखा होगा एमसीक्यूज में किसी भी प्रकार का जो टीचर का इम्पैक्ट वो नहीं आता, उसका स्कोर सेम रहता है। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है तो और आपने बी वाला ऑप्शन करा और बी वाला ऑप्शन सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। जो भी मार्क्स डिसाइड हुए उसके हिसाब से मिलता है, यानी उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है ना। या जैसे ट्रू फॉल्स में भी हम कह सकते हैं, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है। उसमें जैसे टीचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें टीचर का उस समय कैसा मूड है, प्लस में टीचर का कई बार आपके साथ रिलेशन कहते हैं उसका भी फर्क पड़ सकता है। बहुत सारी बातें होती है जिसका फर्क पड़ सकता है। ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का किसमें उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहते हैं तो स्कोरिंग बिल्कुल सेम रहेगी। चाहे उसे आप मैनुअल करो, मशीन से करो, तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। अचीवमेंट ऑफ द करेक्ट proportion among question allowed to each of the objective and teaching content. These are the main characteristics of achievement test. जैसे टाइम जर्नली, एक्सेसिबिलिटी, ये और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। the time given to student is always is short supply. However, the student to do not accept very long test. Therefore, the test should be neither be very long or nor very short. ये वाली प्रॉब्लम अभी आप फेस कर ही रहे हैं। जब आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो कोई कहता है मैडम इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और कोई कहता है कि और प्रॉब्लम है, तो वो टाइम का और इंटरनेट का इनका प्रभाव पड़ता है।
कुछ बच्चे कहते हैं जैसे कि जल्दी कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें उस पर प्रभाव उस पर पड़ती है। एक्सेसिबिलिटी, ए गुड टेस्ट should be accessible to student to whom it's being given without regret to the any specific situation. uh, that is the question given in the test should be neither very difficult or not very easy. तो ये सारी बातें जब हम टेस्ट लेते हैं तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे तो हम हर एक बच्चे की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी को हम ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों के लिए हो। ऐसा नहीं है कि आपने कठिन कर दिया तो कुछ एक बच्चे सॉल्व कर पाएंगे और मीडियोकर या लोअर मीडियोकर बच्चे उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टाइम के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर टाइम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चे करके बैठ गए इधर उधर देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें को ध्यान में रखकर अचीवमेंट टेस्ट बनाना चाहिए। Easy in administration. A test is good only when the condition of answering are simple, its instruction should be simple and clear. जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो बहुत क्लियर होने चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि आप एंड सेमेस्टर देते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या टाइम है, कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, और कितने हैं, और कौन सी यूनिट में से आपको कितने पार्ट करने, सारा इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हुए रहने चाहिए ताकि बच्चा आसानी से हर चीज को समझ पाए। कॉस्ट, ए गुड टेस्ट should be inexpensive, not only from the viewpoint of money, but also from the viewpoint of time, effort taken in the construction of the test. इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टीचर अपना 1 घंटा दे रहा है, टीचर अपना 1 घंटा दे रहा है, लेकिन उसकी क्लास में जितने बच्चे हैं, मान लो उसकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे का वो 1 घंटा ले रहा है, तो कितने घंटे ले रहा है, हर एक बच्चे के अगर 1-1 घंटे को काउंट करें तो 50 घंटे ले रहा है। इसीलिए जब हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट, जब निर्माण करें तो आप टीचर जितनी देर में बना रहा है और जितनी देर में वो बच्चा कर रहा है, तो क्या हुआ, एफर्ट्स उसमें दिखने चाहिए कि आपने मेहनत करी है, तो क्या होगा, एफर्ट्स दिखेंगे, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो टाइम है, वो उसमें दिखने चाहिए। स्पेसिफिकेशंस, objective of the lesson being assessed,
relative importance assigned to each objective, tasks employed in the classroom lesson during the unit of time. Time frame for the test. Potential for formative feedback. What is what sorry, when it is conducted. Summative, end of term, end of year, end of lesson. जब आपके एंड सेमेस्टर होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपके पास दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। दो समेटिव होते हैं वो आपके जैसे कि एंड टर्म एग्जाम होते हैं ना, जब आप एंड सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, वो आपके समेटिव एग्जाम होते हैं। फॉर्मेटिव होता है जैसे आपके बीच बीच में आपको प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, जानने के लिए कि बच्चे की कहाँ कमी रह गई है, लेसन के बीच में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या रहते हैं आपके डायग्नोस क्वेश्चन रहते हैं, डायग्नोसिस रहते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सम नेटवर्क इशू, so the connection is lost. Now I will again start my screen. Screen or is visible or not? I think you all are see my screen. Again, I am continuing my topic. तो वो सारे के सारे समेटिव होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट की जो रेंज होती है वो 5-10 मिनट से 3 आवर तक की हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का टेस्ट है, वैरायटी ऑफ आइटम्स, टाइप्स ऑफ एंड फॉर्मेटिव, इस पे डिपेंड उस पे करता है। ठीक है, तो now I will discuss how achievement test score. A student answer are analyzed and score according to the satisfying guideline required. The result are calculated into a raw score. Raw score are converted into standard score using appropriate table. This test are used to determine a student academic strength and weaknesses. जब हम अचीवमेंट, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि अचीवमेंट टेस्ट हम जब लेते हैं तो हम उससे जो बालक है, विद्यार्थी है, लर्नर है, उसकी हम जो स्ट्रेंथ कहाँ पर है, वीकनेसेस कहाँ पर है,
इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। Now I will discuss type of achievement test. We have two types of achievement test, standardized test and teacher made test. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो टीचर मेड टेस्ट हैं ये टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं। आपकी जो टीचर की आपको इवैल्यूएशन करना है उसके अकॉर्डिंग। तो टीचर में टेस्ट थोड़े सस्ते होते हैं, और जो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा का जो पैनल होता है, किसी भी विषय का जो विशेषज्ञ होता है उसका पैनल होता है, उसके द्वारा वो टेस्ट बनाए जाते हैं, है ना। और फिर उसकी पायलट स्टडी होती है, मतलब छोटे से ग्रुप पर उसको डालकर देखा जाता है। उसकी जैसे भाषा एक्सपर्ट के पास उसे भेजते हैं, उसे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भेजते हैं, और फिर उसकी छोटे से ग्रुप पर उसको डालकर देखा जाता है, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की जाती है। और फिर एक बड़े ग्रुप पे डालने के लिए, जैसे बड़े समूह पे डालने के लिए जो अचीवमेंट टेस्ट तैयार हो जाता है। टीचर में टेस्ट तो जैसे आप देते ही रहते हैं कि टीचर आपका अचीवमेंट चेक करने के लिए समय समय पर जो टेस्ट देता है वो होता है। अगर हम इनका कंपैरिज करें तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का और टीचर मेड टेस्ट का तो आपके सामने इस स्लाइड में शो हो ही रहा है। मैं अभी आपको बता देती हूँ पर्पस क्या होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का और टीचर मेड टेस्ट का। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, मेजरमेंट ऑफ द एजुकेशनल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए नंबर्स ऑफ स्कूल। टीचर मेड टेस्ट measure the outcome of a teacher teaching or outcomes of learning in his class. Score is very wide, है ना। इसका जो स्कोर होता है वो बहुत बड़ा होता है। सॉरी स्कोप, स्कोर कह दिया मैंने, स्कोप है। जो स्कोप है वो वाइड होता है क्योंकि बड़े समूह पर डाला जाता है। और जो टीचर में टेस्ट रहता है उसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। जो एक्यूरेसी की बात करें तो जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें विषय विशेषज्ञ का एक पैनल होता है, फिर उसे भाषा के एक्सपर्ट के बाद और विषय के विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, पायलट स्टडी की जाती है, मतलब छोटे समूह पर उसको डाल के देखा जाता है, और फिर उसमें से वापस से क्वेश्चनों की छटनाई होती है, फिर उसको बड़े समूह पे डाला जाता है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। और इसकी अगर कंपैरिजन करें तो ये कम एक्यूरेट होता है। और ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो नॉर्म्स प्रोवाइड करता है कि कैसे इसके करना है। तो और जो टीचर मेड टेस्ट है वो किसी प्रकार के नॉर्म्स को कंटेन नहीं करता है ना, है ना। तो ये इसकी कुछ अंतर है। स्कोर जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज सेवरल स्कोर्स टीचर्स, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर, वर्कर्स, जैसे कि जो आपने देखा होगा जो रिसर्च स्कॉलर रहते हैं कई बार स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने पास में कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट रखे हुए अचीवमेंट टेस्ट के पर भी हैं। तो हम
जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो कभी भी हम आपको उसको दिखाएंगे। और टीचर में टेस्ट होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, टीचर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। पब्लिकेशन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो पब्लिश्ड होता है, और जो टीचर मीट टेस्ट होता है वो नॉन पब्लिश्ड होता है। जैसे कवरेज एरिया की बात करें तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है कवर, ये स्टेट को कवर कर सकता है, रीजनल कैरिकुलम को कवर कर सकता है। और जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो स्मॉल ग्रुप को, उसकी क्लास को, उसकी कैरिकुलम को उसको कवर करता है। तो ये आज हमने अपनी क्लास में अचीवमेंट टेस्ट देखा, और उसमें हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो देखी, और टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट देखे। अचीवमेंट टेस्ट के बाद में हमने इसमें डिफरेंस भी देखा कि जो दोनों टाइप्स के अचीवमेंट टेस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर कॉर्पोरेशन, आपने मुझे सहयोग दिया, कॉपरेशन, एंड आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।